Hello students, now I am your Ajay Rokde sir. Now in today's video we learn or we study new lesson variation. Now what is mean by variation? Now we start from one example. Now suppose pain and the cost of pain. You know that if the cost of one pen is suppose 3 rupees, then what is the cost of 2 pen? Now obviously it is 6 rupees. 3 pen, it is 9 rupees. 5 pen, 15 rupees, and if I take 10 pens, then the cost of 10 pen is 30 rupees. Understand? Now what happened here? Now what is this? Here, if the quantity of pen is increases, its cost is also increases and it increase proportionally. Look here the pen number of pens are increases, then here cost of the pen also increases. This type of variation is called a direct variation. Then what is meant by direct variation? If the one number of series are increases, then other numbers are also increases, then this type of proportion are called direct variation, and this variation is written as x is directly proportion. This is the sign of proportion. X is proportional to y. Understand? And in direct variation, the ratio is always constant. Look here, 1 upon 3. 2 upon 6 means it is also 1 upon 3. 10 upon 30 means also 1 upon 3. Ratio are constant. Now we write in direct variation x is proportion to y, and therefore we take a one constant equal to k is called a constant of proportionality. In proportion sign we take equal to k and this y as it is. This k is called constant of proportion. And therefore, we can write here x upon y is equal to k, that is constant. Understand? Means the x upon y means this ratio is always constant in direct variation. Understand? And what is meant by inverse variation? Inverse variation, suppose I take here m and n. The number of workers I take m and number of days to complete the work is suppose n. Now in that case what happened? Suppose I take a 50 worker, suppose 50 workers complete a one work in a one day. In a one day, then if I decrease number of workers, अगर हम number of workers को अगर कम करते हैं तो obviously number of days क्या होंगे? Increase. Suppose हम वर्कर यहाँ पर 25 कर देते हैं, हमने वर्कर्स की संख्या कम कर दी
तो नंबर ऑफ डेज भी इंक्रीज होंगे। यानी अगर 25 वर्कर लगाएंगे तो उसे 2 डेज लगेंगे वर्क कंप्लीट करने के लिए। अंडरस्टैंड? अगर वही वर्क सिर्फ 5 वर्कर्स करते हैं, जैसे जैसे वर्कर कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे वो वर्क करने का जो डेज है वह इंक्रीज होगा। 5 वर्कर्स को और भी ज़्यादा वर्क डेज लगेंगे। इट टेक 10 डेज। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीजेस, नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेस। यानी 1 नंबर अगर डिक्रीज होते हैं तो अनदर नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसे कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होता है, या अगर फर्स्ट अगर इंक्रीज होगा तो सेकेंड डिक्रीज होता है। ऐसे कंडीशन में कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। और इन्वर्स वेरिएशन इस तरह से लिखते हैं, m इज दिस प्रोपोर्शन साइन, m इज प्रोपोर्शनल। कैसे? इन्वर्सली मीन्स 1/n। This is called inverse variation and this is a direct variation, and therefore we can write here m is equal to, we take one constant of proportionality k upon n here, and therefore when we take here n, then m into n is equal to k. It means that in inverse variation the product is constant. देखो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो रहा था, रेशो इज कांस्टेंट, एंड इन इनवर्स वेरिएशन द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। अंडरस्टैंड? नाउ वी टेक some examples, that is practice set 7.1. What is here? Write the following statement using the symbol of variation. अभी सिम्बॉल्स कैसे लेना समझ गए आपको? क्या लिखा है, circumference c of circle is directly proportional to the radius. तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या लिखेंगे, c is proportional to r. Understand? Second, consumption of petrol in car, that is L, and distance traveled by car are direct variation. तो हम लिखेंगे L proportionally D. L is directly proportional to D. Here mass of the iron block has direct variation with the volume. यहाँ पे लिखेंगे m proportional to v. बहुत ही easy exercise है. Now we take another example. Second example, complete the following table considering that the cost of apple and their numbers are direct variation. तो देखो अभी हमने पेन और कॉस्ट का एग्जांपल लिया था, वैसे यहाँ पे नंबर्स ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट का एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट 1/8 है, तो यहाँ पर 4/32। ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम थोड़ा जूम कर देते इसे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है x इज प्रोपोर्शन टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज होंगे तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होंगी। तो कैसे लिखेंगे, x प्रोपोर्शन टू y, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k
वाई, प्रोपोर्शन साइन के बदले हम लेंगे इक्वल टू के, और ये के है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, द रेशो x अपॉन y इज इक्वल टू k, दैट इज कांस्टेंट। एंड देयरफॉर व्हेन वी पुट द वैल्यूज x अपॉन y, x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 1, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू लेंगे 8, तो k आ जाएगा हमारा 1/8। अंडरस्टैंड? एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यानी क्या, ये k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, k की वैल्यू है 1/8 इंटू y। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो सपोज अब हमें यहाँ पर ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ये हमारा वेरिएशन आ गया। फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, यहाँ पर ये वैल्यूज गिवन नहीं है। सपोज इसे हम लेंगे m, यहाँ पर लेंगे n और यहाँ पर लेते हैं p। तो व्हेन ठीक है, हमें x फाइंड आउट करना है, हमें क्या दिया है y। व्हेन y इज इक्वल टू 56, y इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुटअप करेंगे, x फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू y/8, y की वैल्यू है 56 अपॉन 8, तो x की वैल्यू हो जाएंगी 7, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा 7। अंडरस्टैंड, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड में क्या दिया है, व्हेन x गिवन है यहाँ पे, व्हेन x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12, y हमें फाइंड आउट करना है, देन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वैल्यूज पुटअप करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू है 12, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में इज इक्वल टू y/8, या एज इट इज इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारा इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1/8y, दैट इज y/8। ये हो जाएगा x की वैल्यू पुट के y 12 इज इक्वल टू y/8, तो y की वैल्यू हो जाएंगी 12 इंटू 8 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 96। अंडरस्टैंड? अब थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या गिवन है, व्हेन y गिवन है, y इज इक्वल टू 160, देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फिर वैल्यूज पुटअप करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, x इज इक्वल टू y/8, वैल्यूज पुटअप करेंगे, y की वैल्यू 160, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 160/8, दैट इज x इक्वल टू 8 2 जा 16, दैट इज 20। तो ये आ गए आपके आंसर्स, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर है 7, सेकेंड में यहाँ पे आ रहा है 96 और यहाँ पर आ रहा है 20, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि m इज प्रोपोर्शनल टू n, m प्रोपोर्शन टू n, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m इज इक्वल टू kn, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सपोज
अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। व्हेन फर्स्ट कंडीशन क्या है, m की वैल्यूज़ गिवन है, m इज इक्वल टू या फिर हम इसमें रेशो लिखेंगे m अपॉन n इज इक्वल टू ये हो जाएगा k। वैल्यूज पुटअप करेंगे, m इज इक्वल टू 154, देन n इज इक्वल टू 7। हमें दोनों m और n गिवन है, वैल्यूज पुटअप करेंगे। देयरफॉर 154 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू k। पहले गिवन वैल्यू से आपको मिलेगा वैल्यूज ऑफ k, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएंगी, देयरफॉर k इज इक्वल टू 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 दैट इज 22। ये आ गई k की वैल्यूज़। एंड देयरफॉर इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होगा, m इज इक्वल टू के एन था, k की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 22, k की वैल्यू 22 n। अंडरस्टैंड। चल अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या किया है, वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फाइंड आउट करना है। व्हेन n इज इक्वल टू 14 तो ये वैल्यूज पुट करेंगे। व्हेन n इज इक्वल टू 14 देन m फाइंड आउट करना है, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वैल्यूज पुट करेंगे, m फाइंड आउट करना है, m इज इक्वल टू 22, n की वैल्यूज गिवन है इंटू 14, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा m इज इक्वल टू 22 इंटू 14, 14 टू ज़ा 28, कैरी 2, 14 टू ज़ा 28, 30, 28 एंड 2 30। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। अंडरस्टैंड। तो इसे सॉल्व करते हुए फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने, सबसे पहले प्रोपोर्शन लिखेंगे, नेक्स्ट इक्वल टू के एन लिखेंगे, देयरफॉर रेशियो में डालेंगे m अपॉन n इक्वल टू के। फर्स्ट कंडीशन गिवन है उससे हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। 154 अपॉन 7 इक्वल टू k, तो k की वैल्यूज आ गई 22। अब ये k की वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, उसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। m इक्वल टू के एन, तो m इक्वल टू 22n। व्हेन n इक्वल टू 14, अब सेकंड हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। n इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, देन m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वैल्यू पुटअप करेंगे, m फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 22 इंटू n की वैल्यूज़ 14, तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया 308। और इसी तरह से आपको आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। थैंक यू।